Hello everyone, I'm Yash and I'm here to tell you something about Good Health Store. Okay, so Good Health Store is a family run business started by Ms. Shagufta Yasmin, aims to keep your family's wellness in mind. We at Good Health Store try to bring a bunch of such organic products with their own unique ingredients known for years. Going one step ahead, we also make available pure silk items like saris, stoles, scarves, etc. with traditional prints and digital prints too. We try to preserve the traditional outfits of our Kashmiri culture and make those available to reach to people. Our mission is to provide you with uniquely beneficial natural healthy foods, supplements and other products at affordable prices. Our customers are our biggest asset. Hence, we strive consistently to improve our services to give you the best we can. Now we will have a look at the wide range of products offered by Good Health Store. In dry fruits, we have Kashmiri organic almond kernel, Kashmiri organic red cherries, Kashmiri organic walnut kernel, Kashmiri organic white mulberry, Kashmiri kagzi almond. In honey, we have Kashmiri organic acacia Yes, honey. ma'am. One second, Yash. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hi everyone, I'm Dr. Gagan. I practice in some leading hospitals of Delhi and I have a clinic in Kirti Nagar in Delhi. Just interrupted in between that I have been a big time user of honey in my house because we had a cancer patient and we needed a lot of things to be done with honey. And I had the honey from Good Health Store. They are very good at the product. I really thank you for the honey. The quality of honey is really nice. Thank you so. It's one of the best. Like all leading brands, say Dabur and all, they get frozen and they have that separate layer of sugar. But Good Health Store honey has never been in my house for it's been like 3 years, and I've never been having any complaint from it. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your kind feedback. Continuing with this, the products in honey, we have Kashmiri organic acacia honey and Kashmiri acacia saffron honey. In lentils, we have Kashmiri organic rajma and Kashmiri organic kidney beans. In spices, we have Kashmiri organic masala tikka, Kashmiri organic shahi jeera, and Kashmiri organic chili powder. In traditional tea, we have Kashmiri organic keva, instant tea mix, and Kashmiri organic keva, green tea. Moving on to saffron, we have Kashmiri organic saffron and Kashmiri organic saffron 1 gram threaded. In shawls, we have handmade kani shawls all over pashmina and handmade kani shawl. In saris, we have chinan sari with tilla work and chinan silk saris. You can get all these products at www.goodhealthstore.in, or you can text us on WhatsApp number 84471. On Twitter, you can follow us at the rate Good Health STOR1. On LinkedIn and YouTube, you can find us at the rate Good Health Store. On Google, you can simply type down Good Health Store and you'll find us. Moving on, please follow us on all social media platforms as a winner would be declared through a post on all our social media handles. Thank you. All right, yes, thank you for your presentation. Now, moving on with the workshop. Uh, See, the thing is, because of this pandemic, we are not able to meet anyone, and it is very tough to have a social gathering. So, GHS team have thought that through this competition, we could be able to meet such people. And so, thank you everyone for joining. GHS teams welcome you. And here are the few rules. If you have any doubt, any query, you could raise hand, or you could type in the chat box if you have any questions. Our moderator are very pleased to help you. And moving further with the workshop, first day we are going to cook Kashmiri paneer and firni.
सो आई वुड रिक्वेस्ट मैम, यस्मीन मैम, जो भी प्रेजेंटेशन है वो आप दें। Yeah, hi everyone. Being the part of this Good Health Store and entering in this Kashmiri Zaika, today we are going to prepare फिरनी और कश्मीरी पनीर। तो उसके लिए हमें जो भी चाहिए वो ये सामान हमें लेना है। वो है, सबसे पहले हम लेंगे, ये जीरा है, ये हम लेंगे सौंफ पाउडर, और ये हम लेंगे हल्दी पाउडर, और ये लेंगे सौंफ पाउडर, और ये कश्मीरी चिल्ली, और ये सॉल्ट है। और जो खड़े मसाले हैं उसमें हम लेंगे ये तेज पत्ता, और ये लेंगे ग्रीन कार्डमम, और ये ब्लैक कार्डमम, और ये हमारे पास ये है सॉरी, ये थोड़ा पेपर। सा आप ऊपर कर सकते हो, वी कांट सी। या ये पेपर है, और ये शाही जीरा है, क्योंकि हम कश्मीरी खाना बना रहे हैं इसलिए हम शाही जीरा यूज करेंगे। अगर आपके पास वो प्लेन जीरा है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और जो आपके उसमें वो मैसेज में डाला हुआ था कि आप लोग वाइट जीरा भी यूज कर सकते हैं। और ये है दालचीनी जो हम इस्तेमाल करेंगे। सब्जियां यूज करेंगे, वो पेपर, ये है कैप्सिकम करूंगी मैं यूज, ये धनिया पत्ता, ये कस्तूरी मेथी, ये प्याज, क्योंकि मैंने आपको मैसेज बॉक्स में पहले ही बोला था कि काट के रख दीजिएगा चॉप, और एक पेस्ट बनाकर गार्लिक का, और ये हमारे पास ग्रीन चिली है। मैं यहाँ पे क्रीम यूज कर रही हूँ, आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, घी, आप क्रीम को स्किप कर सकते हो। और ये मैंने ग्रेट करके रखे थे टमाटर, ये आप यूज कर सकते हो। और ये ऑयल है कुकिंग ऑयल, मैं यहाँ पे सनफ्लावर यूज कर सकती हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो वो यूज कर सकते हो। और ये चीज है, ये हम यूज करेंगे। आप लोग मेरे साथ कुक कर रहे हैं, तो मैं, अगर आपको बीच बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो म्यूट अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो। अगर नहीं कुक कर रहे हो तो आप भेज भी सकते हो। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब इसको कुक करना। उसके लिए मैं 2 पैन लूंगी साइड बाय साइड, ताकि हमारा टाइम भी बचे। एक पैन में मैं सिर्फ पानी चढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं एप्रन पहन लेती हूँ। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा, ताकि हम पनीर को फ्राई कर उबालें। इस कढ़ाई में मैं तेल डाल दूंगी, ताकि हम साइड बाय साइड इसको फ्राई भी करते रहे, ताकि हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पनीर जो है इसी का स्लाइस कर लेते हैं। मैं 1 चम्मच हल्दी डाल दूंगी,
और 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। अगर आपको मेरी बात समझ ना आए या आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो साइड बाय साइड। और इस वाले पैन में मैं तेल डाल रही हूँ। तब तक मैंने पनीर को साफ करके रखा है, इसको मैं सिर्फ अब वो कर लूंगी, स्लाइस काट कर रही हूँ। हम थोड़े बड़े स्लाइसेस करेंगे क्योंकि हम कश्मीरी पनीर बना रहे हैं इसलिए। यह ½ kg मैंने पनीर लिया है, इसमें मैं 5 ही स्लाइस कर लूंगी। सफेद बर्तन जल्दी से। Can the camera be zoomed? ये देख लीजिए, ये पनीर का हम इसमें डाल देते हैं। इसको पीस पानी देते हैं। इसको साथ साथ हम स्ट्रीम भी करेंगे। आप लोगों को कुछ समझ तो आ रहा है ना मेरा वीडियो? मैं तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा कुकिंग पे ज्यादा ये है। पनीर इसमें डाल दो, दिखेगा। ये पनीर मैं इसमें डालूंगी क्योंकि यहाँ से तेल भी गर्म हो गया। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए ये है कि पहले हम पनीर को स्लाइस करेंगे और स्पाइसेस जो मैंने दी है वो नमक, हल्दी, सौंफ, जीरा, सौंठ और हम जो कश्मीरी खाना बनाते हैं इसमें हम सौंठ का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। कश्मीरी स्पाइसेस में सिर्फ 2 ही चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, सौंठ और सौंफ। तो सबसे पहले मैंने पनीर का स्लाइस करके इसको उबाला हल्दी और नमक के पानी में, और इसको फ्राई भी मैं साइड साइड से कर रही हूँ ताकि टाइम थोड़ा हमारा कम बचे। ये जो हल्दी का पानी है इसको हम नहीं फेंकेंगे, इसको ऐसे ही रखें।
ये जो पनीर, जो हमने हल्दी का पानी है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि हम पनीर में इस्तेमाल कर पाए। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? मैं ऑडिबल तो हूँ ना सबके लिए? हेलो, मैं ऑडिबल तो हूँ ना? सब लोग Yes. तो सुन रहे? Yes. थोड़ा धीमी आंच पे इसको हमें फ्राई करना है ताकि हमें ये अच्छी। बाकी मैम, हमने पूछा था लोगों से, अगर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है मैम से तो आप पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, जैसे कि कश्मीरी फूड में जो इंडिजीनियस स्पाइसेस हैं वो सबसे ज्यादा कौन कौन से यूज होते हैं जो कश्मीरी फूड को अलग बनाते हैं बाकी चीजों से? मैंने तो आपको पहले ही बोला, जो कश्मीरी सौंफ और सौंफ है वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि कश्मीरी कल्चर जो है ये मिक्सड है, हिंदू मुस्लिम का कल्चर। बहुत सारे लोग जैसे अभी मैंने पनीर बनाया तो जो हिंदू लोग हैं वो घी डाल देते हैं, तो इसमें वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों वैरायटी भी बहुत होती है, और उसमें हींग डलता है इसलिए। बट शॉर्ट और सॉफ्ट दोनों डलता ही रहता है इसमें, मतलब वो चाहे आप पंडित का खाना बनाए या मुस्लिम का खाना बन जाए तो दोनों में सौंफ और सौंफ दोनों डलता है। अच्छा जी मैम, चैट बॉक्स पे एक डाउट है कि शॉर्ट पाउडर होता क्या है? शॉर्ट, सॉरी, शॉर्ट पाउडर होता है वो जिंजर पेस्ट, जैसे जिंजर पेस्ट हम यूज करते हैं तो ये ड्राइड जिंजर होता है, उसी को यूज करते हैं और इसको कश्मीरी में शॉर्ट बोलते हैं। जिंजर को कश्मीरी में शॉर्ट। ओके ओके जी। बाकी एक क्वेश्चन आया कि कश्मीरी डिश में आपकी फेवरेट कौन सी है सबसे? मेरी यखनी है सबसे फेवरेट। ओके। थोड़ा कश्मीरी खाना थोड़ा सा इजी भी, जो लोग कश्मीरी है उनको इसलिए कश्मीरी खाना पसंद आता है क्योंकि कश्मीरी खाना बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगता है आसान। तो थोड़ा टफ रहता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। Ma'am, एक और question है, which is, can we fry paneer first and then add water, या फिर हमें पहले we have to do it the other way? नहीं, पनीर कैसे, ताकि पनीर को हल्दी में इसलिए डालते हैं ताकि इसका अपना वाला कलर और खट्टापन, कोई कोई पनीर सॉफ्ट नहीं होता है तो उसका खट्टापन और वो जाता रहे, इसीलिए। तो पनीर को पानी बाद में तो पानी में ही पकेगा ना पनीर। हमारा पनीर जो जो फ्राई हो जाएगा वो साइड बाय साइड इसमें पानी डालकर ठंडे पानी में डालेंगे, क्योंकि इससे सॉफ्ट एंड सॉगी हो नहीं हो, सॉफ्ट पनीर रहता है, सॉगी नहीं हो जाता है, और बहुत ही टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। इसलिए मैंने इधर ठंडा पानी एक बाउल में, ठंडा पानी डाल दिया एक बाउल में। अब मैं इसी के अंदर ये पनीर फ्राई हो गया। आप इससे भी तेज फ्राई कर सकते हो, लेकिन इतना काफी होता है फ्राई करना। नहीं, पनीर को तो पहले फ्राई करना है, फिर, क्योंकि कश्मीरी फूड ज्यादातर फ्राई ही होता है, फ्राई के बिना इसमें मजा नहीं आएगा। यही तो इसकी सबसे बड़ी खसूसियत तो इसकी यही है कि हम इसको फ्राई करते हैं, इसीलिए इसका और करने में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए तो है।
अगर हम बाद में इसको फ्राई करेंगे तो फिर वो सॉगी, वो तो वैसे रहेगा ना, पनीर मखनी की तरह ये हो जाएगा, फिर तो कश्मीरी पनीर का जायका नहीं इसमें आएगा ना। Ma'am, here's another question which says, can we buy these products online, like in the store? या वो तो पहले ही जब हमने वो किया था अपना वो, उसमें तो हमने सबको बोला था, क्योंकि हमारा शॉप भी है ऑनलाइन, तो आप लोग बाय कर सकते हो। मैं इसलिए पहले पनीर फ्राई कर रही हूँ, फिर बाद में प्याज और वो करूंगी फ्राई, टमाटर, ताकि तेल जो हम यूज कर रहे हैं ये रीयूज ना हो जाए, साथ में एक ही डिश में हम सब कुछ इस्तेमाल कर पाए। नहीं तो मैं साइड साइड से इसको उसमें भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन उससे फिर क्या हो जाता है, तेल भी यूज हो जाता है, तो वो उसका वैल्यू ही खत्म होता है, फूड वैल्यू। इसलिए एक ही बार में इसी तेल में मैं प्याज भी फ्राई करूंगी, और इसी तेल में मैं टमाटर को भी फ्राई करूंगी। बाकी मैम एक क्वेश्चन और है कि कश्मीरी क्विजीन के अलावा आपको और कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को डोसा खुद अच्छा लगता है, साउथ इंडियन डोसा। डोसा और सांबर इज वन ऑफ माय फेवरेट। मैं सबको ऑडिबल तो होने में बोलने जा रही हूँ, आप लोग सुन तो पा रहे हो ना मुझे? मेरी आवाज बेटर तो आ रही है ना सबको? मैंने बेसिकली माइक चेंज कर लिया है, क्या मेरी आवाज आप सबको अच्छे से आ रही है ना? जी मैम, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज क्लियर है लेकिन थोड़ा जोर से बोलिए। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? जी। मैं सबको ऑडिबल तो हूँ ना? मैं सबको ऑडिबल तो हूँ ना? जी मैम, ऑडिबल है, आवाज आ रही है आपकी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो चैट बॉक्स पे डाल दे, या म्यूट करके मुझे अभी पूछ सकता है।
ये ट्राई करके मैं ठंडे पानी में तो डाल रही हूँ अब, क्योंकि इसी पानी में मैं फिर वो डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये हमारा सारा पनीर अब फ्राई तो हो गया, और इसमें इस वाले में मैंने ये मटर पनीर इस ठंडे पानी में डालकर, क्योंकि हमारा पनीर सॉगी ना हो जाए और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब जब, क्योंकि हमारे पास तेल चढ़ा हुआ है गर्म ही है, तो हम प्याज को फ्राई करने को छोड़ देते हैं। और जो पनीर है इसको हम क्या करेंगे, हम एक पैन को चढ़ाकर इसको इस पे करके, ताकि आपको दिख पाए आराम से, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। तो इसमें जो हमारे पास पानी था ना पनीर का, जो पीला, जो हमने उबाला था पनीर को, जो पनीर को हमने उबाला था वो पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा होता ही है, इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू इसी में होता है। और जो हमने ये पानी, ठंडा पानी में डाला था बाउल को, हम ये दोनों इसमें पलट रहे हैं। जितना पनीर उबलेगा और पकेगा उतना पनीर अच्छा बनेगा। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे एक एक करके। आप सबको तो मेरी आवाज आ रही है ना, मैं ऑडिबल तो हूँ ना सबको? ये मैं हल्दी इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। मैं इसमें सौंठ थोड़ा सा, अगर हम सौंफ 1 डालेंगे तो सौंठ हम आधा ही चम्मच डालेंगे। ये सौंफ मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये जीरा मैंने इसमें डाल दिया, और ये मैं थोड़ा सा हल्का ही लाल मिर्च इधर ऐड करूंगी, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और हल्का सा ही नमक डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नमक इसमें डाला हुआ था। नमक आप अपने अनुसार भी खा सकते हो, तेज कम जैसा भी आप पसंद करते हो वैसे। तीखा भी आप अपने हिसाब से खा सकते हो। मैं इसके अंदर एक शिमला मिर्च डालूंगी, छेद करूंगी छोटे छोटे इससे, तो फिर वो उसके अंदर डाल दूंगी। ये ये बहुत ही छोटा मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि पनीर बहुत कम है हमारे पास। तो इसको मैं छेद कर रही हूँ छोटे छोटे, ताकि इसका जो एसेंस है इसके अंदर आ जाए। और पनीर का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि वो दूध की चीजें खाएं, तो उनसे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि क्या क्या मैंने डाला, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इशू था आवाज का। तो मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ये मसाले सारे डाल दिए इसमें। जीरा मैंने डाल दिया इसमें, हल्दी मैंने डाली, सौंफ का पाउडर डाल दिया, और सौंफ का पाउडर डाला, और मिर्ची डाल दी, और बहुत ही कम नमक डाल दिया है, क्योंकि पहले ही मेरे पास नमक डाला हुआ था इसमें। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने को छोड़ रही हूँ, और तब तक प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है, प्लीज आप मुझे अभी पूछिए, जब तक प्याज हमारा सब कुछ यहाँ से फ्राई हो जाए। आप पूछ सकते हो तब तक। इसको उबालने को तो छोड़ दिया मैं, अगर कोई क्वेश्चन है आप प्लीज पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी मैम, एक क्वेश्चन आया है चैट में कि
क्या हम टमाटर के पेस्ट की जगह दही यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन कर सकते हैं। दही थोड़ा अगर मीठा हो, पनीर और दही एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि अब व्हाइट पनीर एक बनती है, वो उसमें यूज होता है दूध। दूध और दही तो फिर तो ये तो दूध और दही हो जाएगा ना, क्योंकि जो पनीर है वो तो दूध प्रोडक्ट है ना। अभी थोड़े टाइम लग जाएगा इसको, तब तक मैं आप लोगों को फिर से, अगर किसी को और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए मुझे, अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपनी सारी क्वेरीज को। हाँ, कुछ भी रिलेटेड पूछ सकते हो, कश्मीरी कल्चर के बारे में पूछ सकते हो, किसी भी चीज के बारे में रिलेटेड तो कश्मीर पूछ सकते हो आप, या फूड के बारे में, कोई भी फूड के बारे में पूछ सकते हो। तो मैम हम दही यूज में ला सकते हैं क्या फिर, एक अगर फाइनली अगर यूज करना चाहें तो वैसे तो दही नहीं यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं टमाटर पसंद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। खट्टापन नहीं लाना है ना, इसमें सब्जी कोई डालनी है इसलिए। वैसे कश्मीरी जो फूड है ना, वो सब ऐसा बना हुआ है कि आप इसमें थोड़ा सा, जैसे शिमला मिर्च ये मैंने खुद ऐड करती हूँ, क्योंकि मिल्क के प्रोडक्ट्स बहुत बच्चे नहीं खाते, मेरे अपने बच्चे भी नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड किया है, ताकि इसका जो दूध का जो खुशबू है वो चली जाए, और शिमला मिर्च की जो एसेंस है इसके अंदर चली जाए, और एकदम फ्रेशनेस इससे आ जाती है, और पता भी नहीं बच्चों को चलता है। तो बाकी थोड़ा थोड़ा तो इनोवेट हो जाता है फूड को, तो हम थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोई बनाए तो हमारे साथ शेयर करे तो अच्छा ही है, क्योंकि फूड तो जो पुराने जमाने में वो बन बन के ही तो आगे बढ़ा है, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो होती है, जैसे तेज पत्ता कश्मीरी फूड में यूज नहीं होता, वहाँ का अपना एक फ्लेवर होता तो? अच्छा मैम, है। ये मैं एक क्वेश्चन आया, पनीर फ्राई करते टाइम आपका क्या पनीर पैन में स्टिक होता है क्या? मेरा पनीर कबाब स्टिक नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत पहले धीमी आंच में कर देती हूँ, और पहले तेल को पकने देती हूँ थोड़ा सा। अगर गर्म तेल में कुछ भी डालेंगे वो स्टिक नहीं होता है, अगर आप ठंडे तेल में डालोगे तो स्टिक हो जाएगा आपका खाना, चाहे वो कोई भी खाना हो, वेज नॉन वेज, तो स्टिक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा खाना खाना जो पकाएंगे ये हमें बहुत पेशेंस से पकाना होता है खाना, और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। हम डाल लाएंगे फटक से डालेंगे, अगर हम नॉनवेज भी ठंडे तेल में डालेंगे वो भी चिपक जाएगा। बाकी आप एक क्वेश्चन और है कि प्याज को अलग पैन में फ्राई हो रहा है क्या प्याज? नहीं, मैंने अलग नहीं किया, ये तो वही तेल है ना जो इस्तेमाल मैंने पनीर में किया, ताकि ये रीयूज बार बार हम तेल नहीं कर सकते हैं, फिर किसी जैसे तेल हम बार बार एक ही तेल को दूसरी चीजों में डालेंगे तो फिर वो हार्मफुल इफेक्ट उसका होता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है ज्यादा, लेकिन मैं पकाती हूँ इसी तेल में, ताकि जो ये तेल है अभी खत्म हो जाए, फिर दोबारा इसको हम यूज ना करें किसी और सब्जी में। क्योंकि ऑयल तो हमारे बेस्ट है, क्योंकि इसमें होता है फैट्स होते हैं, लेकिन जो हार्मफुल फैट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे जब हम इसको रियूज करते हैं वो इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाता है ना, इसलिए। ये भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। बाकी मैम एक ये क्वेश्चन और आया है, कितने सालों हाँ। से कुकिंग कर रही हैं आप? अच्छा, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। कुकिंग का कोई थोड़ी एज होता है, कभी भी आप सीख लो। वैसे मुझे कुकिंग मेरा पैशन है, तो मैं कुकिंग हमेशा करती हूँ। मैं हमेशा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ घर से ही। और कश्मीरी बाकी क्विजीन के अलावा और क्या क्या ट्राई किया है आपने बनाने मैं के लिए? मैं पास्ता, पिज्जा सारा कुछ घर में बनाती हूँ। इटालियन, मैं साउथ इंडियन फूड बनाती हूँ घर में। वैसे मैं सारे खाने, पराठे, सब कुछ
वो नॉर्थ साउथ मिला के बना ही लेती हूँ कि इतना चल जाता है, कम सब खाने हम बना सकें। हाँ, अब मैं अंकुर को कभी अपने घर पे इनवाइट करके इसको मैं चाइनीज इटालियन सब खिलाती हूँ, तब इसको पता चलेगा साथ में कश्मीरी क्यूजीन भी। जी मैम, बिल्कुल। वो पानी का ये थोड़ा सा भी ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल कर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे, लहसुन को थोड़ा सा। यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा ये पनीर भी फ्राई, कितना जितना पनीर पकेगा उतना इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। जितना ये बहुत ज्यादा पकेगा, जितना ये भुनेगा इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। बाकी मैम, कश्मीर अपनी लाल मिर्च के लिए भी फेमस है, तो लोगों का ये स्टीरियोटाइप बन गया है कि कश्मीरी फूड बहुत स्पाइसी होता है। क्या ये सच है क्या? वैसे स्पाइसी फूड होता है कश्मीरी ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत बनता है। कश्मीरी जो पंडित लोग खाते हैं वो तो कम स्पाइसी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्पाइसी। जैसे कश्मीरी बाजवान है वो तो स्पाइसी नहीं होता। अब ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है सबके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च जो आपने देखा होगा, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए अच्छा होता है, वो स्पाइसी तीखा खाना नहीं होता है। हाँ, बट क्योंकि विंटर्स हार्श होते हैं तो इसलिए लोग थोड़ा सा पहले जब था तो लोग उसको यूज करते थे जैसे ही मसाला टिक्का बनाकर, ताकि उन लोगों का जो विंटर हार्श होता था, पहले इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी ना फूड की, जैसे आजकल फूड की अवेलेबिलिटी है 12 महीने, तो उन दिनों नहीं होती थी। तो कश्मीरी लोग क्या करते थे, सारे जैसे जो जिनके पास जो सब्जियां एक्स्ट्रा होती थी वो उनको ड्राई करते थे, मसालों को ड्राई करके इनका पेस्ट बनाते थे, सुखाते थे, फिर ठंड में यूज करते थे, क्योंकि बर्फ बहुत हार्श विंटर्स होते थे उनके पास। तो स्पाइसी फूड पहले खाते थे। अब मैं ये प्याज हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए निकाल देते हैं। मैं आपका अभी आपकी क्वेश्चन का मैं पूरा अभी आंसर करूंगी, पहले मैं इसका प्याज निकाल कर फिर मैं आपसे बात करूंगी। जी, कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कश्मीरी पनीर बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें जो भी सामान चाहिए, मसाले, सब्जियां, वो क्या है, क्योंकि अब मैंने पनीर तो डाल दिया है बनने को, लेकिन फिर भी जो जो मसाले हम इस्तेमाल करेंगे वो ये है: हल्दी, जीरा पाउडर यूज करेंगे, सौंफ और सौंठ। भी जो ये दो मसाले हैं ये कश्मीरी मेन मसाले होते हैं, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। और मैं ग्रेटेड टमाटर, क्योंकि मैंने हम लोगों ने मेंशन करके रखा था उसमें फॉर्म में कि आप लोगों को ग्रेटेड टमाटर और चॉप्ड प्याज ही यूज करेंगे हम, लेकिन अब मैंने क्योंकि प्याज को फ्राई कर लिया है
तो और मैंने जो पनीर को फ्राई किया है, जिस पानी में उबाला भी है और जिस पानी में रखा भी है, वो ये है। ये देख लीजिए पनीर उबल के कितना सुंदर लग रहा है। इसका पानी हमें थोड़ा ज्यादा सोक करना है। अब मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट डालूंगी, और क्योंकि मेरे को लगता है हमारा इतना तेल थोड़ा ज्यादा ही होगा, इसमें पहले सारा निकाल के। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, पहले हमने पनीर को हल्दी वाले पानी में उबाल दिया। फिर उसी पानी को इसके अंदर थोड़े मसाले डाल दिए, और एक शिमला मिर्च छेद करके मैंने इसमें डाल दिया। और मैंने टमाटर ग्रेट करके रखा, और ये प्याज को मैंने फ्राई करके रखा है। अब क्योंकि हमने लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था, एक चम्मच हम इसमें डाल के ब्राउन, ये एक चम्मच मैं लहसुन का लेकर इसमें डाल दूंगी तेल में। तब तक प्याज भी हमारा ठंडा हो जाएगा। आप में से जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर सकते हैं। जिनका माइक ऑन है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इको आ रहा है आवाज में। और जब उन्हें कुछ पूछना हो तब अनम्यूट करें प्लीज, क्योंकि आवाज में बहुत ज्यादा इको हो रहा है। ये थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम ग्रेटेड टमाटर डालेंगे और प्याज को भी साथ साथ फ्राई कर कूटेंगे। हाँ अभी मैं बोल, ये देख लीजिए ये हो गया ना गोल्डन ब्राउन, ये हो गया हमारा। बस इसके बाद अगर डालेंगे तो ये जलने लग जाएगा, तो इतना ही हमें करना है, क्योंकि अगर ये नहीं गोल्डन ब्राउन करेंगे तो ये फिर खाने में हमें दिखेगा। अगर ब्राउन नहीं हो जाएगा, गोल्डन कलर का नहीं हो जाएगा ये, तो ये खाने में दिखेगा। अब हम इसके अंदर ये सारा टमाटर भी डाल रहे हैं। जब तक टमाटर फ्राई हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ये प्याज है ये थोड़ा हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसको इसमें कूट देंगे, इसका एक पेस्ट हम बनाएंगे। मैम एक क्वेश्चन आया है, टमाटर प्यूरी के पहले क्या डाला था आपने, वो सुन नहीं पाए थे। मैंने वो, हाँ लहसुन डाला था ना, लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था ना इसमें। ये डाला था ना लहसुन का एक चम्मच, जो पेस्ट है यही एक पेस्ट चम्मच डाला था ना लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हम लोग जी जी गार्लिक ओके। नहीं डालते हैं, क्योंकि हमने सौंफ डाला हुआ है। अब जो हमारे पास ये प्याज है, अब हम इसको ये करेंगे, कूटेंगे इसमें।
थोड़ा सा हल्का पानी डालकर कूटेंगे, या हल्का सा दूध हम इसमें डाल सकते हैं ताकि इसका कलर व्हाइट हो जाए। जिन लोगों ने थोड़ी देर में ज्वाइन किया है, अगर उन्हें कुछ समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं, अभी तो मैं बोल सकती हूँ फिर से उनको। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बाकी मैम एक क्वेश्चन है कि कश्मीरी कल्चर और साड़ी का क्या रिलेशन है? क्या साड़ी कश्मीरी कल्चर में बहुत प्रोमिनेंट है? नहीं नहीं, क्यों, कश्मीरी साड़ी तो पहनते हैं क्योंकि वहां पे तो पंडित भी रहते हैं ना, पार्ट ऑफ पंडित एंड बोथ रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम दोनों तो है ही वहां पे। तो उनकी उनके कल्चर में तो साड़ी है, लेकिन उनके कल्चर में थोड़ा मतलब हम लोगों के कल्चर में दोनों दोनों मिला जुला के है कि कश्मीरी लोग साड़ी पंडित लोग पहनते हैं, और कश्मीरी जो मुस्लिम है दे डोंट वेयर इट। बट दोनों का ये है, ये तो पार्ट ऑफ देयर कल्चर है कश्मीरी साड़ी। इसलिए जो हम साड़ीज रख रहे हैं वो तो मलबरी ट्री से जो आता है सिल्क, उसकी है, सबसे एक्सपेंसिव ट्री होता है, सबसे अच्छा सिल्क उसका होता है। हम्म। ऐसे हम अपने पनीर को भी देख रहे हैं, पनीर भी थोड़ा पक ही रहा है, अच्छा लग रहा है वैसे। इसमें जो प्याज है ना, कूटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए क्योंकि धीरे धीरे कूटना पड़ता है, काम थोड़ा स्लो होता है, कश्मीरी फूड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए। अब हम इसमें सारे जो मसाले हैं ना वो एक एक करके हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें मतलब आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, मैं लाल मिर्ची डालूंगी इसमें सबसे पहले। ये मैं लाल मिर्ची इसमें डाल देती हूँ, और मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा इनको फ्राई करके फिर आप देख लीजिए टमाटर का कितना अच्छा कलर आ जाएगा, फिर हम बाकी सारे मसाले डालेंगे, क्योंकि टमाटर और लाल मिर्च को जब हम इकट्ठे डालते हैं तो इसका एक अमेजिंग कलर आ जाता है। ये देखिए कितना रेड दिख रहा है। ये हल्दी और जब लाल मिर्ची डालते हैं, अगर किसी को मतलब हिंदी नहीं समझ आ रही है तो सबको जब मेल हो जाएगा सबको, तब आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका मिल जाएगा। अब हम इस अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम अपना जो हमारे यहाँ का शाही जीरा डाल देते हैं, क्योंकि शाही जीरा जो होता है जब हम इसमें डालते हैं ना तो वो गल जाता है, इसका कोई मतलब ये बिल्कुल फूड के अंदर निकलता है, इसके कोई दाने दिखते भी नहीं है, ये लगता ही नहीं हमने जीरा डाला, और इसकी बहुत फूड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। दो दो इलायची मैं डाल रही हूँ बड़ी वाली, दो मैं छोटी इलायची डाल रही हूँ, दो लौंग डालूंगी, और दो ये काली नमक डालूंगी, और ये जो एक टुकड़ा दालचीनी का डाल देती हूँ,
और ये जो तेज पत्ता है 2 मैं डाल देती हूँ। मैंने पहले ही बोला कि कश्मीरी कल्चर में तेज पत्ता नहीं होता है पनीर में यूज, लेकिन मैं कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा एसेंस आ जाता है। थोड़ा सा तोड़ के इसको यूज करेंगे। आपको तो स्क्रीन सारा विजिबल हो रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा मैं आगे कर लेती हूँ। अब हम इसमें ये डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, सौंफ का पाउडर, और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे। अगर हम एक डालते हैं सौंफ, तो आधा ही हमें सौंफ डालना होता है, हाफ द क्वांटिटी। और हम जीरा पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। वैसे ना भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं डाल रही हूँ। ये देख लीजिए टमाटर का कितना अच्छा कलर हो गया है। मैम, शॉर्ट पाउडर और सॉफ्ट पाउडर वाला एक बार फिर से बोल सकते हैं आप? हाफ और फुल के कौन कौन से डालें? अच्छा, हाँ हाँ, वो जो सॉफ्ट पाउडर होता है उसको हम फुल चम्मच डाल सकते हैं। अगर वो 1 चम्मच डालेंगे तो हाफ दी क्वांटिटी हम सौंठ डालेंगे, जिंजर पाउडर। ये हमेशा इसका यही रूल है कि हम लोग हाफ वो फुल डालेंगे या हाफ, अगर वो 2 स्पून डालेंगे या हाफ स्पून डालेंगे। मतलब अगर वो 1 डालेंगे आधा, अगर वो 2 डालेंगे 1। ये होता है इसका कॉम्बिनेशन इन दोनों मसालों का। और यही दो कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे खाने को, अगर हम पूछेंगे कि हमारा खाना कैसे कश्मीरी खाना है, क्योंकि हम ये 2 मसाले डालते हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कश्मीरी फूड के। ये देख लीजिए, ये पेस्ट भी बन गया हमारा। अब हम इसको निकाल कर इसके अंदर डाल देंगे। वो दिखेगा ये। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये इसको थोड़ा सा पका के अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी। ये मेरे पास क्रीम है, मैं इसको डालूंगी। आप इसको ना भी डालेंगे तो आप घी डाल सकते हैं, अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो फिर आप घी का 1 चम्मच इधर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रीम यूज कर रही हूँ इसलिए। तो आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन पे क्रीम? क्योंकि अब हमारा मसाला थोड़ा पक गया, अगर इसमें कुछ नहीं डालेंगे तो ये जलने लग जाएगा। ये मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाला है। अभी इसको थोड़ी देर पका के मैम, एक क्वेश्चन आया है कि क्रीम डालना जरूरी है, या फिर हम उसको स्किप भी नहीं डाले तो भी कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी? तो घी डाल सकते हैं, अगर नहीं भी पसंद है घी वो भी स्किप कर लो, कोई बात नहीं। इतना ही पका के फिर पनीर के अंदर डाल दो। मैं क्रीम डाल रही हूँ तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपने मुझे पूछा था दही डाले, क्रीम और जैसे दूध और दही मिलाएंगे वो फट जाएगा, लेकिन क्रीम तो दूध ही होता है ना, तो ये मिलाने से अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग डालें, लेकिन मैं डाल देती हूँ ऐसे। थोड़ा सा पकने से फिर इसको उसके अंदर डाल देंगे, पनीर के अंदर, तो अच्छा लगेगा। ये पनीर देख लो कितना अच्छा पक रहा है, अच्छा लग रहा है पनीर। ये देख लीजिए पनीर कितना बढ़िया लग रहा है हमारा।
हाँ, ये देख लो पनीर कितना अच्छा लग रहा है हमारा एकदम से। ये शिमला मिर्च का, सिर्फ शिमला मिर्च का हमें वो जो शिमला मिर्च का फ्रेशनेस है ना वो इसमें आ जाएगा। शिमला मिर्च अगर पसंद है तो खा सकते हैं, वरना फिर इसको भी छोड़ सकते हैं। ये देख लो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टमाटर पक गया कि नहीं? जो हमें इसके अंदर मसाले हैं वो पक गए, ये देख लीजिए। ये साइड से ना, जैसे हमने इसमें क्रीम डाला तो ये तेल छोड़ रहा है ना साइड साइड से, इसका मतलब है हमारा मसाला पक गया और टमाटर भी बहुत अच्छा पक गया। अगर खट्टे भी होंगे तो इस तरह अच्छे से पकाने से ये भी मीठापन छोड़ देंगे। अब हम इसको पनीर में के अंदर मिला देंगे और तब तक हम अपनी फिरनी भी साइड बाय साइड पकाएंगे। मैम एक क्वेश्चन और आया है कि कितने टाइम तक पनीर को हमको गैस पे रखना है बॉईल करने के लिए? हाफ एन आवर तक रख सकते हैं, या अगर आप कम पानी डालेंगे, क्योंकि पनीर का मैंने पहले ही बोला ना, जितना पकेगा इसके अंदर मजा चला जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा मोटा पनीर डाल रहे हैं ना, तो इसलिए अगर हम थोड़े पतले स्लाइस डालेंगे, जैसे शाही पनीर हम बनाएंगे, तो उसमें तो उतना नहीं, उसमें भी पकाने में ही मजा चला जाता है। अभी मैं ये सारा इसमें पलट रही हूँ। जैसे अब इसमें थोड़ा सा कुछ हो, थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मिला देंगे, ताकि ये एक भी छूटा हुआ जो भी है कुछ जाया ना हो जाए। थोड़ा सा पानी डालकर ये इसके अंदर मैंने पलट दिया। अब क्योंकि अभी तो लग रहा है हमारे पनीर में पानी, और ये है क्योंकि हमने ये डाला। अब जब तक पनीर पकेगा तब तक हम अपनी पनीर बस पका लेंगे। ये देख लीजिए, अभी तो पकी नहीं है फिर भी इतना अच्छा कलर दिखा रहा है ये। अब हम इसको सिम पे, जैसे ये पानी सोख लेगा, अगर आप ग्रेवी वाला ज्यादा पनीर पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम ग्रेवी वाला पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसको सिम पे थोड़ी देर पकाऊंगी, जब तक इसकी ग्रेवी सारी खत्म ना हो जाए, थोड़ा सा ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर पकने को दूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग तो ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो वो रख सकते हैं, इसको थोड़ी देर पक के छोड़ सकते हैं। अभी मैं अब, क्योंकि हम फिरनी भी बना रहे हैं आज, कश्मीरी फिरनी, तो उसके मैं इंग्रेडिएंट्स तो सब कुछ बता सकती हूँ, और उसका तब तक ये भी पक जाएगा, हमारा दोनों पक जाएगा, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब क्योंकि हम आज बना रहे हैं कश्मीरी फिरनी, तो सबसे पहले कश्मीरी फिरनी के लिए जो भी हमें चाहिए, हमें सारे ड्राई फ्रूट जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेजन डाले हैं, मैंने इनको चॉप करके रख लिया है। मैंने यहाँ पे कैश्यू डाला है, मैंने कैश्यू को भी चॉप करके रख दिया है। और मैंने यहाँ पे जो आलमंड है, इनको वाटर में सोक करके रात भर रख के इनका छिलका उतार के इसको भी चॉप करके रखा है। और ये मैंने कोकोनट यूज किया है, तो वो भी मैंने काट के रखा है छोटा छोटा करके, क्योंकि मुझे कोकोनट से अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि कश्मीरी खाने में कोकोनट का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, मतलब जो मीठा बनता है। और ये सूजी है, तो ये मैं डालूंगी, और चीनी इसमें मैं डाल दूंगी, ये शुगर में डाल दूंगी, और मैं 1 लीटर दूध लूंगी, और मैं ले लूंगी सैफरॉन। ये सैफरॉन है, मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सैफरॉन फिरनी बनाना चाहती हूँ, तो मैं सैफरॉन का हमेशा अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरा सैफरॉन है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ।
ये सैफरन है। हाँ, क्योंकि मैं यही सैफरन इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैंने सैफरन फिरनी यूट्यूब पे भी डाली थी, पीपल लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया और सबने बोला हमें पैटर्न ऑफ फिरनी बता दो, इसलिए मैं आज फिरनी बना रहे हैं और वही बिल्कुल सैफरन फिरनी। बहुत लोगों ने पूछा कि आपके कंपनी का सैफरन है, मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का सैफरन ही यूज करती हूँ। और मैं 1 लीटर दूध यूज करूंगी इसके लिए। अगर हम 1 लीटर दूध यूज करेंगे तो 4 लोग खा सकते हैं इस फिरनी को, एक एक बाउल के हिसाब से 4 बाउल हो जाएंगे, क्योंकि एक मतलब इसे मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, तो इसको पहले मैं गैस पे चढ़ाकर इसको उबाल लाऊंगी। और जब तक इसमें उबाल आएगा सिर्फ इसके अंदर सैफरन डाल दूंगी, क्योंकि जो ये सैफरन है या ऑर्गेनिक सैफरन है, इसको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, इसके अंदर डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, आपको खुद ही पता चलेगा, ये देख लीजिए दूध में डालते ही इसने अपना कलर छोड़ दिया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, तो इसलिए ये कलर एकदम से छोड़ देता है। अभी फिरनी बनाते बनाते कलर भी इसका अच्छा आ जाएगा। फिरनी की बहुत, जब मैंने यूट्यूब पे डाला था फिरनी, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए मैंने आज ये स्वीट डिश बनाई है। और फिरनी है ही कश्मीरी कल्चर का, तो मैम एक क्वेश्चन ये है कि कश्मीरी कल्चर में फिरनी का क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा स्वीट्स का उतना नहीं है, क्योंकि कोल्ड रीजन है, तो इसलिए स्वीट्स का वहाँ नहीं है। फिरनी है हमारा यहाँ जो स्वीट डिश होता है, फिरनी है हमारा स्वीट डिश। जैसे रोजे होते हैं उसमें होता है, जैसे कोई भी पूजा होती है उसमें लोग फिरनी यूज करते हैं, जैसे शादी होगी तो उसमें यूज करते हैं। फिरनी एक हमारा सिग्नेचर डिश है जो हम इसमें देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैफरन होता है, दूध बहुत ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट्स की कोई कमी नहीं होती है, तो वहाँ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही है ना, तो इसलिए वहाँ पे बनती है फिर। और ये इसका सबसे ज्यादा ये अच्छा ये है कि अगर आप फिरनी ठंडा खाएंगे तो कोई हार्म नहीं करेगा। अगर आप गर्म खाना चाहते हो तो गर्म भी खा सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को स्वीट खाने से गला ठंडा होती है तो गला खराब हो जाता है, क्योंकि ये गर्म ठंडा दोनों हम खा सकते हैं, तो इसलिए इसको खाने से अच्छा ही रहता है स्वीट। और इसमें सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स ही होते हैं, तो कोई गला वाला भी नहीं खराब हो जाता। जब तक दूध में उबाल आएगा तब तक हम अपनी पनीर को भी चेक करेंगे एक बार। अगर आप चाहो तो इतना ही आप ग्रेवी रख सकते हैं, छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा गाढ़ा वाला पसंद है, थोड़ा ग्रेवी मोटी पसंद है, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी, अदरवाइज ये पक गया है। इसको हम देख सकते हैं ये पक गई है। अगर आप थोड़ा नमक भी अभी चेक कर सकते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे नमक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप इधर नमक चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं, या तीखा आपको पसंद है नहीं वो डाल सकते वो। बाकी मैम एक क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कश्मीरी फूड के बारे में सोचते हैं तो नॉनवेज ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, जैसे मटन, रोगन जोश और ये सारी चीज़ें। सो ऐसी कौन सी वेजिटेरियन डिश है जो इक्वली अच्छी है? पनीर है उनका, वो दम आलू है कश्मीरी डिश। बहुत सारी नॉन वेज भी, वेज के साथ वेज डिशेज भी बहुत है। दम आलू तो कश्मीरी बहुत मशहूर है। जैसे नदरू है वहाँ का, वो बहुत मशहूर है। साग कश्मीरी है। बहुत सारी डिशेज तो बहुत बहुत ज्यादा। जैसे व्हाइट पनीर है, वो खाते हैं। ये रेड पनीर है, ये सारी तो वेज डिशेज ही है ना। अब हम, ये हो गया था ये 4 5 ये डाल देती हूँ ग्रीन चिली को। मैं तो काट के भी नहीं डाल रही हूँ, ताकि इसका सिर्फ खुशबू चला जाए इसके अंदर, वो नहीं। और थोड़ा सा धनिया मैं डाल दूंगी इसमें,
चॉप करके। ये धनिया हम थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा अच्छा मजा आ जाएगा। हल्की सी मैं कसूरी मेथी, लेकिन इसको मैं हाथ से पहले रब करूंगी ताकि गर्माहट से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। हमने ये 4-5 मिर्चियाँ डाल दी, ये थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने डाल दिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। आप YouTube पे भी जाकर हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और उसकी जो बहुत सारी डिशेस हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अभी मेरे साथ नहीं बना रहे हो, आपको कोई क्वेरी है, कभी भी आप बनाओगे तो आप हमें व्हाट्सएप या हमारे कोई भी जो सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हो और हम आपको उस टाइम ही बोल सकते हैं कि क्या आपके अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी आ जाए बनाने में। मैम चैट में एक मैसेज आया है कि उन्होंने आपकी यूट्यूब रेसिपी जो फिरनी की थी उसको देख के घर में फिरनी बनाया है और वो बहुत ही अच्छा बना था। थैंक यू सो मच। वैसे ही अभी भी बनेगी, होप। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो मैं बना रही हूँ मैं समझा भी पा रही हूँ वही से वैसे अच्छे से। मैम जब अब वेजिटेरियन डिशेस की बात हो रही थी अभी 5 मिनट पहले, तो चैट में एक हाँ हाँ। सजेशन आया कश्मीरी नवरत्न पुलाव, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, उसमें क्या होता है कि जो सारे कश्मीरी वेजेस होते हैं ना वो डालते हैं उसमें, और थोड़ा सा कश्मीरी पुलाव ना इस पुलाव से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसको सारे जो उसमें वो डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं सारे, और सारे वेजेस डालते हैं उसमें, वो नहीं डालता है नॉन वेज। लेकिन क्योंकि कश्मीरी कल्चर का है ही कि वो सब लोग हम वो डालते हैं उसमें नॉन वेज, लेकिन अगर कश्मीरी पुलाव भी बनता है ना उसमें भी नॉन वेज का सूप डलता है। लेकिन क्योंकि जब नवरत्न बनाते हैं उस टाइम हम वो नहीं डालते हैं उसमें। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप स्किप कर सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डाल सकते हो। अगर आपको कोई भी डिश सीखनी है या कोई भी आपको है जो आप कश्मीरी डिश सीखना चाहते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लेंगे वो सारे और बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ये देख लीजिए सैफरॉन कितना बड़ा बड़ा चढ़ जैसा हो गया, और कलर भी साथ साथ इसने छोड़ ही दिया। ये देख लीजिए सैफरन का कलर ही देख लीजिए कितना सुंदर है। एक क्वेश्चन चैट में आया मैम, हम कश्मीरी पुलाव में नॉनवेज की जगह क्या चाप यूज कर सकते हैं क्या? तो फिर वो मतलब पुलाव तो नहीं रहेगा ना, चांप भी यूज कर सकते हैं, कश्मीरी चांप तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन चांप मीट तो कोई भी आप जो भी आप पसंद करते हो, जो भी आपका टेस्ट है उसके हिसाब से नॉनवेज डाल सकते। सोया चाप, आप सोया चाप का बोल रहे हैं? आप उसके बारे में मैसेज में कौन सा चाप, नॉनवेज चाप के बारे में बोल रहे थे या नहीं, सोया चाप के बारे? वो सोया चाप के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, सोया भी चाबी जैसे सोया चाप तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो उतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि जो सोया का थोड़ा होता है ना वो प्रोटीन में थोड़ी सी खुशबू रहती है, उसको जब तक अच्छे से नहीं कुक करेंगे तब तक वो अच्छा नहीं बनेगा।
मैं अभी 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ सोया चाप की, सोया चंक्स की यखनी। तो 1-2 दिन में वो, मतलब इसी वीक में वो अपलोड कर रही हूँ। तो उसमें देख सकते हैं कि सोया चाप कितना अच्छा बनता है। अगर हम उसकी, जो भी हम वेजिटेरियन डिश नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं ना, वो भी जो बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेस भी वैसी बनती है इन द सेम पैटर्न। जैसे वो बनता है नॉन वेज, वैसे ही वेजिटेरियन डिश भी वैसे बनता है। अब क्योंकि हमारे इसमें उबाल आ गया, तो मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। जैसे मैं इसमें ये थोड़ा सा मैं थोड़ा करके ऐड करूंगी, क्योंकि मैं इसमें वो भी थोड़ा, मैंने कोकोनट ऐड कर दिया, रेजन्स ऐड कर दिए, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ। तो आप जितना मन चाहे डाल सकते हैं। मैं सूजी थोड़ी यहाँ पे डालूंगी, क्योंकि सूजी जितनी डल के फूलेगी उतना इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाएगा। क्योंकि फिर ये कभी भी अगर ठंडा करके खाएंगी, गर्म करके खाएंगी, इससे ये थोड़ी थिक नहीं हो जाएगी। सूजी ही इसमें पकाने की टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है कि सूजी बहुत अच्छी पक जाए इसमें। अगर बहुत सारे लोग जो होते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो शुगर नहीं डालते हैं, वो शुगर को स्किप करते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अभी 2 चम्मच शुगर डाल रही हूँ, लेकिन आप इसको अभी स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट हम डाल रहे हैं, तो इसमें ड्राई फ्रूट का मीठापन तो आएगा ही। तो इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। मैं खुद भी कम ही शुगर डाल देती हूँ, 2 ही चम्मच में डाल रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं। जब फिर नहीं पक जाए, तो उसके बाद जब वो खाएं, बहुत सारे लोगों के घर में डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं, तो वो खा सकते हैं। अभी चीनी स्किप कर दे, फिर लास्ट में वो शुगर फ्री वाला ऐड कर सकते हैं जब ये पक जाए। मैम, इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज है, तो क्या हम शुगर की जगह हनी यूज में ला सकते हैं? हाँ, शुगर की जगह हनी भी मिला सकते हैं, क्योंकि जैसे जो हमारी कंपनी की हनी है, वो तो एकेशिया हनी है, उसमें कोई शुगर कंटेंट नहीं डालते हैं। जो एडिड शुगर होगा वो नहीं डाल सकते हैं। जहाँ पे एडिड शुगर हो वो बोली हनी नहीं यूज कर सकते। हनी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम यूज कर सकते हैं हनी को। लेकिन वो वाली हनी जिसमें एडिड शुगर ना हो, जो नेचुरल हनी हो, वही खा ले। जो नेचुरल हनी है वो डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, जैसे वॉलनट, आलमंड, ये सब तो उनके लिए भी बेनिफिशियल ही है। लेकिन अगर उसमें ऐड करके हो शुगर, तो वो सही नहीं होता, वो फिर उनके लिए नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा पकड़ने में, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें और 2 चम्मच। तो अब इसको थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा, तब टेस्टी हो जाएगा। अगर हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, तो अभी क्योंकि अगर सूजी को साथ में हिलाते हैं, तो इसके अंदर वो बॉल छोटी छोटी नहीं बनती है। अब हम अगर इसको छोड़ देंगे, तो ये पकता रहेगा। सिम पे भी पका सकते हैं, इसकी फ्लेम को लो भी कर सकते हैं। मैम, फिरनी आपको पर्सनली ठंडा अच्छा लगता है या गरम? हाँ, मुझे ठंडा अच्छा लगता है। वैसे मैं ठंडा फ्रिज का ही खाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा, ये एकदम से जब ये ऐसे फिरनी बनाते हैं ना, तो ये एकदम से वो हो जाती है, बहुत टेस्टी हो जाती है। तो ठंडा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी अगर गला खराब हो, तो फिर गर्म ही खा लेते हैं। मैंने पहले ही बोला ना, फिरनी वो डिश है जो हम ठंडा गर्म दोनों खा सकते हैं। मतलब ये वो स्वीट डिश है जो ठंडा गर्म दोनों खा सकते हैं। इसके दोनों में मजा अच्छा होता है। अगर गरम गरम भी खाते हैं, तो उसमें भी टेस्ट आता है। जब तक फिरनी पकेगी, तब तक हम अपने इस डिश को भी देख ही लेते हैं। ये देख लीजिए, ये भी पक गया। आप अभी भी चेक कर सकते हो, अगर इसमें चीनी कम हो, कोई नमक कम हो, तो डाल सकते हैं अभी नमक।
या थोड़ा आपको स्पाइसी कम लगे तो डाल सकते हैं, या स्पाइसी थोड़ा सा लगे तो हल्का सा फिर आप दूध डाल दीजिए, ऐसा करके। लेकिन गर्म दूध डाल दीजिएगा ताकि फटे ना। अगर स्पाइसी हो गया आपको ज्यादा तब, वरना ऐसे ही ठीक है। ऐसे लग तो रहा है अच्छा बन गया। अभी थोड़ी देर में हम इसको डिश आउट करेंगे, तब तक हमारी फिरनी भी पक जाएगी। क्वेश्चन है तो आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि अभी फिरनी में थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, क्योंकि मैं सूजी को अच्छे से पकाती हूँ तब फिरनी अच्छी बनती है। ये देख लीजिए दाने दाने आ गए ना सूजी में, यही मोटा हो जाएगा, दूध गाढ़ा हो जाएगा, तभी अच्छा बनेगा। मैम ऐसे बहुत लोग हैं जो आजकल शक्कर की जगह जैगरी या गुड़ भी डालते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं क्या हम फिरनी में? नहीं, फिरनी में तो चीनी या हनी डाल सकते हैं, क्योंकि जब वो जो होता है, गुड़ जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो इसका अपना कलर कैसे रहेगा फिर। या तो वो लास्ट में जब गरम करके डाले, लास्ट में जब फिरनी सर्व करे उस टाइम थोड़ा सा गरम करके उसमें डाल दे, अगर उनको पसंद है। तभी तो मैंने बोला ना, फिरनी में आप स्किप कर सकते हो चीनी, तो लास्ट में जब उनके पास वो आए जिनको वो पसंद हो तो वो डाल सकते हैं उस टाइम। अगर अभी डालेंगे तो फिरनी वो नहीं हो, उतनी अच्छी नहीं टेस्ट होगी। मैम चैट में क्वेश्चन आया है कि हम सूजी की जगह बॉइल्ड राइस यूज में ला सकते हैं क्या? वो ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन कौन सा होगा, सूजी या बॉइल्ड राइस? सूजी ज्यादा ऑप्शन है सूजी के तो, क्योंकि सूजी फुल ऑफ प्रोटीन्स है। बॉइल्ड राइस से ये ज्यादा अच्छा बनता है। वो तो फिर खीर बन गई ना, वो तो फिरनी नहीं हुई ना, ये तो फिरनी है। वो खीर बन जाएगी ना फिर, अगर हम बॉइल्ड राइस डालेंगे वो तो खीर हो गई ना फिर। वो तो राइस वाली खीर हो गई, वो फिरनी नहीं हो गई ना फिर। फिरनी में हर जगह, पंजाबी लोग भी बहुत ज्यादा फिरनी बनाते हैं, वो भी सूजी ही डालते हैं। हर जगह फिरनी में सूजी इस्तेमाल होती है। सिर्फ कश्मीरी फिरनी में सैफरन यूज होता है, और ड्राई फ्रूट, सब जगह ड्राई फ्रूट में होता है। कुछ कुछ लोग तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट दूसरे तरीके से डाल सकते हैं जो उनके पास अवेलेबल हो। ये देखो सैफरन का कलर कैसा आ गया है इसमें। हमें कैसे पता चलेगा हमारा सैफरन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? वो इससे पता चलेगा, ये देख लीजिए, इसके अंदर के जो धागे हैं ना, जैसे जो सैफरन का थ्रेड है वो कटा नहीं है, कहीं से भी टूटा नहीं है, यही ओरिजिनल सैफरन की निशानी होती है। अगर नकली सैफरन डालते हैं तो वो एकदम से गल जाता है और पता भी चल जाता है उसी टाइम। ये कुछ नहीं गलेगा, सैफरन का दाना ऐसे ही रहेगा, चाहे आप इसको कितना भी उबालो, कितने भी पानी में डालो, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यही ओरिजिनल सैफरन और कश्मीरी सैफरन थर्ड वाला बहुत ज्यादा होता है, तो यही एक फर्क होती है ओरिजिनल सैफरन में। ये कलर छोड़ेगा लेकिन इसका खुद का कलर चेंज नहीं होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये, इसका खुद का कलर चेंज नहीं हुआ ना, सैफरन का खुद का कलर नहीं चेंज हुआ है ना, लेकिन फूड में कलर आ गया है। ये है ओरिजिनल सैफरन की, और ये टूट भी नहीं गया है, चाहे हमने इसको कितना भी घुमाया।
जब तक हम फ्री, हमारी थोड़ा सा ये फ्री ना, बहुत ज्यादा मैं टाइम इसमें देती हूँ, क्योंकि अगर इसके जो ये ना फिरनी के जैसे ये सूजी के दाने हैं ना, ये थोड़े बहुत अच्छे से पक जाएंगे ना, तो इनको जैसे फिर आप ठंडा रख लो, गर्म रख लो, तो ये मोटा और वो नहीं हो जाएगा, गाढ़ा नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं इसमें आएगा। लेकिन अगर आप इस सूजी को, क्योंकि फिरनी में सूजी का ही पकना, ये देख लीजिए सैफरन का भी, सूजी का ही पकना सबसे जरूरी होता है इसमें, कि सूजी बहुत अच्छे से पक जाए, और ड्राई फ्रूट्स का भी जो इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड हो जाए, तो बहुत ही टेस्टी उसी लिए बनती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेती है। आप लोगों को तो बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? नो मैम। मुझे तो पकाने से पता नहीं चल रहा है, मे बी कि आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो। अगर आप चाहो तो कैमरा ऑन कर देख सकते हो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ म्यूट अपने माइक्स को कर देना ताकि मेरी आवाज सुनाई दे आप लोगों को। उम्मीद है जब जिस दिन कंपटीशन होगा, आप लोग भी बहुत ही अच्छी और अमेजिंग डिशेस पकाएंगे, और मैं भी बहुत सारा उसमें सीख लूंगी। जब तक हमारी फिरनी थोड़ी सी और गाढ़ी ना हो जाएगी, तब तक हम इसको स्लो फ्लेम पे रख ही देते हैं, और तब तक मैं इसको, जो पनीर हमारा है, इसको डिश आउट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी पनीर कैसे पकी है। मैम, लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा है, क्या आप इन खानों को पैक करा के भेज सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चलो थैंक यू, हाँ क्यों नहीं, आप ऑर्डर कर लीजिए, मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं। मेरा ये देख लीजिए, ये बन गया पनीर, ये देखिए कितना सुंदर। अब हम इसको डिश आउट करेंगे पनीर को, और तब तक फिरनी को सिम कर देंगे स्लो फ्लेम पे। थोड़ा सा वही पेशेंस रखना पड़ता है कश्मीरी खाना बनाने में, क्योंकि ये बहुत ही पेशेंस का काम है, खाना बनाना ही पेशेंस का काम है, या तो फटाफट खाना बना लो तो हो गया, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो खाना बनाना बहुत ही काफी लोगों का। और इस जो पेंडेमिक में है, जैसे जो लोग खाना नहीं जानते हैं बनाना, इस पेंडेमिक में सबको ये हो गया है कि सबको आना ही चाहिए कुछ ना कुछ खाना बनाना, क्योंकि इस पेंडेमिक में जब जो पिछले साल लॉकडाउन हो गया, उससे हम सब लोगों को पड़ गई जरूरत। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया, कि लोगों को जिनको आता था उन्होंने दूसरों को भी खिलाया, लेकिन जिनको नहीं आता था वो खुद भी बहुत परेशान हो गए घर में। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कुकिंग हमें आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, बाहर से हम खा सकते हैं, लेकिन खुद की कुकिंग से हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। हम बोर तो होते हैं, बोलते हैं रोज रोज घर में खाने का, तो फिर कोई और स्टेट का खाना बनाने से थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर ऐड हो जाता है, तो और हमें अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा मतलब हमें खाना कुछ ना कुछ बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग पेंडेमिक सब लोग कितने परेशान हो गए, ज्यादातर बच्चे, जबकि वो पिज्जा का ऑर्डर लेते थे, उसमें भी कोरोना था, जब स्प्रेड बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख ही ले। और मुझे ये पता नहीं कि जो मैंने आपको सिखाया वो सब आप समझ पाए कि नहीं, इतना मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, अगर आप बनाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आप मुझे लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे जो दिया हुआ इस पे, हमारे कोई भी सोशल हैंडल्स पे आप लिख सकते हो, आपका रिप्लाई विद इन 20, अगर आप बना रहे हो वैसे तो आई विल ट्राई कि उसी टाइम रिप्लाई करें, लेकिन अगर आप बना रहे हो, कोई आपको आ रही डिफिकल्टी, तभी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई उसी टाइम करूंगी। मैम, इस लॉकडाउन में क्या क्या नई डिश आपने बनानी सीखी और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया आपने?
ये बात आपने अच्छी बोली। मैं खाना बहुत साल से बना रही हूँ। मेरा तो खाना बनाना मेरा पैशन है एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक न्यू न्यू थिंग्स। और बहुत सारी इनोवेटिव चीजें मैं डाल के बनाती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला, कश्मीरी पनीर में शिमला मिर्ची नहीं डलता है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं पनीर की खुशबू, पनीर के प्रोडक्ट्स, दूध के प्रोडक्ट्स, तो मैं फिर इसमें ऐसे करके कलर चेंज, इसका जो जैसे शिमला मिर्च डालकर इसका कलर चेंज होता है। कश्मीरी पनीर में वो नहीं ऐड होता है, क्योंकि हम मेट्रो में रहते हैं तो हमारे पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है, वो दूध नहीं अवेलेबल है, वो पनीर नहीं अवेलेबल है, तो मैं फिर वो ऐड करती रहती हूँ नए नए। एक डिश को दूसरे डिश में मिलाकर थोड़ा अच्छा बन ही जाता है। अगर आप लेकिन कोशिश करोगे तो सबको आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी नई चीजें भी सीखी, बहुत सारा ऐड भी हो गया लाइफ में। लॉकडाउन ने तो सबको ऐड ही कर दिया, सब कुछ घर बैठकर सबने कुछ ना कुछ तो सीखा ही। जैसे मैं अपने स्टेट के खाने में भी बहुत सारी चेंजेस कर लेती हूँ, मतलब बहुत सारे, फिर बहुत सारे चैनल्स पे मेरा फूड वो बोलते हैं ऐसा कश्मीरी खाने में नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, कश्मीरी खाने में वो नहीं होता, हमारे पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं, आपके पास कुछ और अवेलेबल है, आप उसको भी ऐड करो, लेकिन मेन फ्लेवर तो कश्मीरी सौंफ और शौंठ का ही है ना, और कश्मीरी मिर्ची का, जैसे वो जीरे का, यही चीज तो मेन है ना, तो यही चीज हम ऐड कर सकते हैं, यही फ्लेवर्स होते हैं कश्मीरी फूड के। अब हम इसको थोड़ा स्लो फ्लेम पे रखेंगे, क्योंकि अब इसको 2 या 4 मिनट पकने में लग जाएंगे। ये देख लीजिए ये कहाँ तक था और मैंने इसको कहाँ तक कर दिया, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि 1 kg दूध में सिर्फ 1 लीटर ऑफ मिल्क में सिर्फ 4 लोग खा सकते हैं फिरनी, क्योंकि अभी ये और गाढ़ा हो जाएगा और ये टेस्टी लगेगा फिर। जब तक ये पकेगा तब तक मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देख लीजिए अच्छा पनीर होगा, इससे ज्यादा गाढ़ा, आप देखो इसने सारा तेल भी छोड़ दिया, सब कुछ। आप अपने हिसाब से भी तेल कम ज्यादा, नमक मिर्ची कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये तो मैंने बेसिक सिखाया है कि हम लोग कैसे बनाते हैं, बाकी आप कुछ भी अपने हिसाब से इसमें ठंड कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अपना फ्लेवर भी डाल सकते हैं। सिर्फ कश्मीरी दो ही चीजें इसमें ऐड करनी है जिससे ये कश्मीरी डिश बनती है, वो सौंफ और शौंठ है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, तो आप क्योंकि हम लोग जो कश्मीरी लोग होते हैं वो मोटी पनीर का बहुत बड़ा बड़ा पीस बनाते हैं, तो इसलिए ये मैंने 5 ही पीस इसके बनाए थे। ये 1/2 kg पनीर मैंने लिया था, 1 पाव टमाटर लिया था, और 1 पाव मैंने वो लिया था इसमें प्याज, और एक शिमला मिर्च छोटा सा, बाकी हरी मिर्ची धनिया पत्ता ये आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या क्या लेंगे। ये जो मैं बोल रही थी कि इसमें हमें दिखेगा ही नहीं जीरा, वो आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई जीरा का निशान है, क्योंकि हम जो कश्मीरी जीरा, शाही जीरा होता है, वो दिखता नहीं है, खाने में भी नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर गल जाता है एकदम से। डिश आउट को लेकर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो। मैं इसको थोड़ा धनिया से गार्निश कर लेती हूँ ताकि
करती हूँ आपको समझ भी आ गया और आपको अच्छा भी लगा होगा देख कर ही। अब देख लीजिए, फिरनी जितनी गाड़ी हमें चाहिए ना उतनी हो गई, क्योंकि इससे ज्यादा थोड़ा सा भी थोड़ी देर और पकाएंगे तो ऐसे हो गई। आपको उस कश्मीरी पनीर के बारे में तो कुछ नहीं पूछना है किसी को, मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज, चैट बॉक्स में। मैं आप लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला ये डिश देखने के लिए और मुझे मोटिवेट किया इस वर्कशॉप में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग ये पहली बार ऐसा वर्कशॉप कर रहे हैं और पहली बार ही मेरे ख्याल से देख रहे हैं कि कहीं पे ऐसा वर्कशॉप नहीं होगा जो जिसमें कंपटीशन भी हो, वो सब भी हो। आप देख सकते हैं कि मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, क्योंकि अगर हम किसी को समय भी देते हैं वो भी बहुत अच्छी अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा दे ही देते हैं। अगर फिरनी को लेकर किसी को और क्वेश्चन है तो प्लीज बोल दीजिए, सैफरन फिरनी के बारे में। तो मैं इसको क्योंकि डिश आउट करूंगी इसलिए। अगर आपको कोई भी कश्मीरी डिश बनाना चाहते हो और आपको उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का आपके आंसर कर लूंगी। कोई भी कश्मीरी डिश। जो भी हमने अभी कुक किया है इसका सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन करके सबके मेल बॉक्स में आ जाएगा, वीडियो के साथ में अपलोड हो जाएगा कल तक। हाँ, ये ग्रुप रहेगा, आप इसमें कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं तो इसीलिए पहले ही बोला कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जब भी आप कोई कश्मीरी डिश बनाना चाहते हो या कोई भी या हमारी कोई डिश बनाना चाहते हैं तो वो तब आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बोल सकती हूँ अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है या कोई भी चीज़ आपको चाहिए पता हो कौन सी डिश कैसे बनेगी, आप मुझे मैसेज लिख सकते हो। या कोई भी डिश आप चाहते हो अपलोड हो जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो वो मैं कर लूंगी। मेरा हो गया, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैम एक क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि फिरनी पक चुका है पूरा, उसको चेक करने का कोई तरीका या कोई मेथड है क्या? मैंने अभी बोला ना आपको, एक मिनट, मैंने अभी आपको बोला ना कि जब फिरनी पकती है पहले इसके दाने कैसे थे,
ऐसे ही पतला पतला हमें दिख रहा था ना, ये देखो इसका दाना भी नहीं अब दिख रहा है। इससे अगर कोई मैं इसीलिए इसको पकाने में बहुत टाइम लेती हूँ, ताकि जब हम इसको डिश आउट करें तो ये ऐसे ही रहेगी। अगर आपको इससे मोटी भी गाढ़ी पसंद है, थोड़ा और गाढ़ा कर दो, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा। अब इसमें कोई जैसे पतला गाढ़ी या पतली नहीं हो जाएगी, ऐसी ही रहेगी एज इट इज। क्योंकि इसको हमने बहुत देर तक पकाया है सूजी को, इसके दानों को, क्योंकि पहले दाने दाने दिखते थे सूजी के, अब तो नहीं दिख रहे हैं ना। ओके भाई स्कोर नहीं है। हाफ एन आवर हमें इसको पकाने को लग गया, क्योंकि मैंने धीरे धीरे इसको स्लो फ्लेम पे पकाया, इसलिए इसमें हाफ एन आवर लग गया। क्योंकि मैंने सूजी को बहुत अच्छे से पकाया, क्योंकि मेन फिरनी का सबसे अच्छा होता है कि हम सूजी को अच्छे से पकाए, ताकि ये गाढ़ी और ये ना हो जाए, पतली ना हो जाए। बस यही एक होता है जो फिरनी को डिफरेंट कर देता है। जैसे हमने अभी ये डिश आउट किया, ये ऐसा ही रहेगा, चाहे आप 4 दिन और 5 डेज तक हम फिरनी को फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। करेंगे ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा दूध ले रहा। मैम एक क्वेश्चन आया कि क्या हमको फिरनी को हिलाते ही रहना है क्या? नहीं नहीं, जब इसमें उबाल आ जाए और जब हम इसको सूजी डाल दें तब थोड़ी देर, जब एक बार हमने हिलाना छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हम तब तक और कुछ भी कर सकते हैं काम, जैसे हमने उधर भी कर रहे थे ना, दूसरा काम भी हम वो भी बना रहे थे। सिर्फ एक बार हमको जब तक ये सूजी डालकर एक उबालना आ जाए तब तक। और हमको ढक के रखना है मैम, या फिर उसको ओपन भी रख सकते हैं बर्तन को? अभी तो ये गरम है, तो अगर आपको गरम फिरनी पसंद है तो आप अभी खा सकते हो। अगर आपको ठंडी फिरनी पसंद है तो इसको थोड़ी देर ठंडा करके फिर फ्रिज में आप डाल दो। तो नहीं मैम, क्वेश्चन आया है कि जब हम फिरनी को बना रहे हैं गैस स्टोव पे, जब वो है तो उसको हमको लिड लगा के बनाना है, या फिर ढक के बनाना है, या फिर हमको बर्तन को खोल के बनाना है? नहीं नहीं, वो तो खोल के ही बनाएंगे ना, हम खोल के बनाएंगे, दूध तो गिर जाएगा ना, ये तो दूध है ना, तो ये हमारा डिश, ये हमारी हो गई फिरनी। हम चैट बॉक्स पे मैसेज आ रहे हैं कि फिरनी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थैंक यू। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ